سیاسی گہما گہمے علینا چلتی ہے، ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں، لیکن یہ ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، یعنی انسانی جان کا معاملہ ہے، سیلاب متاثرین کی مزریز کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ آج خاص طور پر اس کی بات کی جائے، اور کیا صورتحال اس وقت سندھ اور پنجاب میں، بلوچستان میں ہے، یہ دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں زہیب ایک طرف بارشیں جاری ہیں، سیلابی صورتحال ہے، سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کے بعد کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں، دوسری جانب پنجاب میں سیلابی صورتحال اس وقت بھی جاری ہے، بڑی مشکلات لوگوں کے لیے کھڑی کر دی ہیں۔ بارشوں نے سندھ کے متعدد اضلاع کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ خیرپور کی بات کریں تو وہاں پر مسلسل 9 روز بھی بارشیں تھم نہیں سکی ہیں، اس کی وجہ سے چھتیں اور دیواریں گرنے سے آج بھی 9 افراد جان سے گئے اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شکارپور، جیکب آباد اور دادو میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات میں 10 بچوں اور 2 خواتین سمیت 12 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ اسی طرح سے کیرتھر پہاڑی سلسلوں میں بارشوں کے باعث کاچھو میں ایک بار پھر معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ بالکل، اور یہ صرف سندھ کے چھوٹے بڑے تمام اضلاع کی یہی صورتحال ہے۔ حیدرآباد، سکھر، بدین، نوشیر و فیروز سمیت سندھ کے دیگر شہروں کے نشیبی علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے، بارش کا پانی جمع ہے۔ راجن پور کی اگر ہم بات کریں، وہاں سیلاب سے سیب نالہ عاقل پور میں شگاف پڑ گیا ہے، نالے میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، ریلا شہر کی جانب بڑھ رہا ہے، اور کئی سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے موجود ہیں، امداد کے منتظر ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں بارشوں اور سیلاب سے متعلق اپنے نمائندوں سے بات کریں گے ہم، آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، اپڈیٹس لیں گے۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ جیو کی دیکھ رہے ہیں۔ حیدرآباد کا سب سے پہلے رخ کریں علینا، سب سے پہلے حیدرآباد کی صورتحال ذرا دیکھتے ہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن مسلسل کیسی صورتحال بنتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے شہر کا نقشہ مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ہر بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقوں کا ڈوبنا معمول بن گیا ہے۔ وجوہات ہیں کہ اس کی ذرا حامد شیخ سے پہلے جانتے ہیں۔ بارشیں باعث رحمت ہوتی ہیں، لیکن یہی بارشیں اب حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے لیے باعث زحمت بن کر رہ گئی ہے۔ 4 روز گزر جانے کے باوجود آج بھی کئی نشیبی علاقے گلیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سائیڈ ایریا، زیر پاک کالونی، لطیف بھون نمبر 12، گلستان سجاد، سٹیزن کالونی سمیت کئی علاقوں میں گھروں میں بھی پانی موجود ہے۔ بچے روزانہ کماتے تھے، وہ بیٹھے میں سارا گھر کا فرنیچر تباہ ہو گیا ہمارا۔ پانی میں رہنے بھی کیا کریں، بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں اور جو ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہماری مدد کرو، ہمارا گھر ڈوب گیا، ہمارے گھر کو دیکھو، ہمارے گھر سے پانی نکالو، یہاں پر کوئی حال ہی نہیں ہے ایسا۔ حیدرآباد میں فراہمی و نکاسی آپ کا دار و مدار واسطہ کے اس بوسیدہ نظام سے جڑا ہوا ہے، جس کا انحصار 111 پمپنگ اسٹیشنوں پر ہے۔ 700 ملازمین کی تنخواہ 7 کروڑ روپے، بلز کی ریکوری کی مد میں 5 کروڑ روپے، سیوریج کی لائنیں بوسیدہ، مشینری ناکارہ، ڈیزل اور مرمت کے اخراجات کے پہاڑ جیسے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ گزشتہ 4 روز میں 250 ملی میٹر بارش واسطہ کے اس نظام کو بہا کر لے گئی جو محض 25 ملی میٹر بارش کے پانی کی نکاسی کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ ریسورسز کی بہت بڑی کمی ہے، دیگر واسطات کو تو سبسڈی دی جا رہی ہے اور گرانٹس ملتی ہیں۔ آنریبل سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو فائنینشیل اسسٹنس دی جائے۔ بہت بڑی ایک ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کی ریکوری کو آؤٹ سورسنگ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سالڈ ویسٹ کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، حیدرآباد کا یہ سیوریج کا اور ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ شہر کی صورتحال سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اب ہمارا یہ بالکل پلاننگ ہے کہ اب ہم کاسمیٹیکل سے زیادہ جہاں پہ نیچے کے ہمارے ڈرینیج کے ایشوز ہیں اور واٹر سپلائی کے ایشوز ہیں، جہاں پہ ہماری یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کو بھی پیرالل ہم ٹھیک کرتے چلیں تاکہ ان فیوچر اس طرح کے ایشوز نہ ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واسطہ سمیت شہریوں کی بنیادی سہولت فراہم کرنے والے سفیک اداروں کو بہتر منصوبہ بندی کے تحت مربوط نظام دینا ہوگا جو غیر معمولی بارشوں کے دوران شہریوں کو ریلیف فراہم کر سکیں۔ کیمرہ مین قادر شکیل کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔ حامد شیخ کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس رپورٹ میں جو سارٹس تھے یہ بڑے سنے سنائے سارٹس تھے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہم کر لیں گے، یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، آئندہ اس طرح کریں گے۔ یہ تمام ہمارے سنے ہوئے سارٹس ہیں، بہت پہلے سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ حامد شیخ ہمارے ساتھی ہیں اس وقت۔ حامد، آپ کہیے گا، بارش تو ہو گئی، اس کی تباہ کاری بھی آپ اس کا احوال بھی بتا رہے ہیں، بارش کو یقیناً کوئی روک نہیں سکتا، لیکن انتظامیہ کیا کر رہی ہے بارش کے بعد، یہ پہلے احوال ہمیں بتائیے آپ۔
देखिए, इस वक्त तो हैदराबाद का ज़िले इंतजामिया तमाम तर कोशिशें इस बात पे कर रही है कि जो हैदराबाद के जो इस पर जो 20% इलाका ऐसा है जहाँ अब भी पानी खड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफाबाद नंबर 12 के उस इलाके में जहाँ तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आबादी का ये मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर घरों में यहाँ पर पानी मौजूद है। 2.5 लाख से आबादी ये मैसूर हो चुकी है। इस वक्त भी इस इलाके के अंदर खासा यहाँ पर में देख सकते हैं कि 12 नंबर के रोड है जहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल बंद हो चुकी है। यही सूरत इस वक्त ताल्लुका हैदराबाद टंडोजाम की इलाके जहाँ 35% इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरीके से कासाबाद का 5% इस इलाका ऐसा है जहाँ भी पानी मौजूद है। यहाँ सुबह वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन जो फोकल पर्सन है हैदराबाद इमरजेंसी के हवाले से, वो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा कर रहे हैं और उनका यही गुफ्तगू की जा रही है सुबह। इसके अलावा 2 रोज कबल जो है वज़ीर आज़म ने भी यहाँ पर बात की थी कि वास्ता के जो सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन ये हर गुफ्तगू जो है हर बारिश के बाद की जाती है। अभी थोड़ी देर कबल हमारी सुबह वज़ीर से बात की तो उनका ये कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो इस पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, सीएम की हिदायत पर जो ये है इस पर सूरत हाल ये है कि जो माह सितंबर में शुरू किया जाने वाला था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, अब कल से शुरू किया जा रहा है। तो ये सुबह वज़ीर इत्तलात का ये कहना ये है कि जिले इंतजामिया है पूरी तरीके से मुतहरिक है। लेकिन बात अगर सिर्फ हैदराबाद ही की नहीं है, पूरा जामशोरो 7 खुद सुबह वज़ीर आला का जो आबाई इलाका है 7 वो अब तक डूबा हुआ है। जामशोरे का इलाका तहसील थाना बोलखान जो अब तक इमदाद हो चुके, सैकड़ों की तादाद बल्कि हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो बेसरो सामने की कैफियत में जहाँ अब तक इमदाद नहीं मिल चुकी। यही सूरत दादू की इलाके की है, मीरपुर खास की है, बदीन की इलाकों की है। ठीक है, हामिद शेख हमारे साथ ही रहेगा। मजीद भी हमने साहम इशू के ऊपर बात करनी है। इससे पहले हम बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र कर रहे थे, लोगों के बारे में बता रहे थे कि वो इमदाद के मुंतज़िर हैं मुख्तलिफ इलाकों में। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में भी यही सूरत हाल है। राजनपुर ज़िले में एक तरफ नदी नालों के सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं तो दूसरी जानिब दरिया सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा जारी है। इससे मुताल्लिक़ हमें इलियास रज़ा रिपोर्ट करेंगे। कि राजनपुर में नदी नालों की सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरा सैलाब से इस टाइम जो बड़े शहर बच गए अब वो डूबना शुरू हो चुके हैं। राजनपुर की तीनों तहसीलें सैलाब में डूब चुकी हैं। सैलाब ने बस्तियों के साथ बड़े शहरों को भी नहीं छोड़ा, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। सैलाब ज़दा इलाकों में कई दिनों से जमीनी रास्ते मुनक़ता होने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। हजारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रिहाइश पजीर हैं। हमारे मकान भी गिर गए हैं और दाने गंदम भी खत्म हो गए सैलाब में। निके बच्चे की हालत अब आप दे दे पे हो, सारी कशा भी नहीं बची, ना दाना बड़ी में ना था कपड़े। राजनपुर शहर को शदीद खतरा बरकरार है। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज शहरियों को फौरी शहर खाली करने के ऐलानात किए। शहरियों की बड़ी तादाद शहर खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गई। इंतजामिया ने राजनपुर को बचाने के लिए इंडस हाईवे पे कट लगा दिया, जिससे सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल है। फौज और रेस्क्यू की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। राजनपुर की क्या सूरत हाल है, इलियास रज़ा से जानते हैं। इलियास, बताइएगा मुतासरीन यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इंतजामिया किस हद तक मुतहरिक है? जी, राजनपुर को एक माह से इस टाइम सैलाब की ज़द में है। इस टाइम राजनपुर की जो तीनों तहसीलें हैं इस टाइम मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं और इस टाइम जो रुझान शहर है वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और फादरपुर एक बहुत बड़ा शहर है वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अब तक ये है कि बड़ी तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल है और दूसरी तरफ जहाँ पे रास्ते अभी तक मुनक़ता हैं तो वहाँ पर अभी तक ये है कि ग़िज़ाई किल्लत हो चुकी है, लोग अंदर फंसे हुए हैं, वहाँ बच्चे भी बीमार हैं और जो मुतासिर नकल मकानी करके आए हैं वो इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद है। मैं आपको साथ साथ ये दिखाता हूँ कि ये देखें, मैं इस तरफ एक सैलाब है तो दूसरी तरफ ये सैलाब मुतासरीन बैठे हुए हैं जो इनकी ये हालत है कि इनके पास कोई कैंप वगैरह नहीं है। ये इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत एक छप्पर टाइप बनाया हुआ है और चारपाइयाँ खड़ी की हुई हैं और इनकी ये है कि इनके पास कुछ लोग आते हैं जो राशन वगैरह लेके आते हैं तो इनको आके देते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी शख्स यहाँ इंतजामिया की तरफ से कोई भी अफसर यहाँ पर नहीं पहुंच रहा। आप बता रहे हैं कि कुछ इलाके हैं जिनका तो राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, ये बताएं कितने इलाके और यहाँ पर कितने लोग महसूर हैं? जी, तकरीबन यहाँ पे दर्जनों बस्तियाँ हैं, इलाके हैं जहाँ पर अभी तक लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिस पर जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमत पंजाब से हेलीकॉप्टर की डिमांड की है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए फ़िज़ाई हमें हेलीकॉप्टर की मदद से उनको निकाला भी जाए और उनको वहाँ पर राशन वगैरह भी दिए जाए।
और ये है कि इस टाइम रुझान इलियास, ये भी बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं, बड़ी तशवीशनाक ये बात है कि इंतजामिया उस तरीके से आपको नजर नहीं आ रही। रजाकार आ रहे होंगे यकीनी तौर पर, और वो राशन भी दे रहे होंगे, दवाइयाँ भी दे रहे होंगे, लेकिन महकमा सेहत क्या कर रहा है और PDMA की तरफ से क्या इक़दाम हो रहे हैं, इंतजामिया कहाँ पर है? ये तो बड़ा तशवीशनाक लग रहा है जैसे आप अहवाल दे रहे हैं हमें। जी, इंतजामिया बिल्कुल यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जो हिफाजती बंद है वो बिल्कुल एक रेत की दीवार की तरह साबित हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लोग सलाम मुतासिरीन बैठे हुए हैं, एक तरफ ऊपर से बारिश हो रही है और उनके पास ना ही कैंप्स है, ना उनके बच्चे तक बीमार हो चुके हैं और उनके पास कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है। यहाँ पर ना कोई महकमा सेहत की टीमें यहाँ तक पहुंच रही है। और अब यहाँ पर ये हालत है कि सैलाब से सांप बहुत ज्यादा यहाँ निकल आए और इंतहाई जहरीले सांप है और इनसे सांपों से लोगों को शदीद खतरा हो रहा है। जी, बहुत ही तशवीशनाक बात जो इलियास रजा हमें राजनपुर से बता रहे हैं। कह रहे हैं इंतजामिया अभी तक गायब है, कोई यहाँ पर लोगों की इमदाद के लिए सही तरह से पहुँच नहीं रहा। हम सैलाब की तबाहकारियों की बात कर रहे हैं और अलीना, अब जो हम मनाजिर दिखाएंगे नाजरीन को और आप भी देखेंगी, वो ऐसे मनाजिर हैं कि कश्तियों का ऑर्डर कर देना चाहिए। उस शहर में कश्तियाँ भेजनी चाहिए क्योंकि चलना फिरना मुश्किल हो गया है, कश्तियों के जरिए सफ़र होगा। और ये आप देख रहे हैं यासिर फारूकी को खड़े हुए, सक्खर के मनाजिर है बिल्कुल। और सक्खर से ही अगर आप बात करें, खुर्शीद शाह साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब सक्खर से हैं, कायम अली शाह बिल्कुल खैरपुर करीबी है उसके, मंजूर वसाण साहब बिल्कुल खैरपुर करीबी है। लेकिन सूरत हाल ये सूबे के सब बड़े इस शहर से, लेकिन ये सूबा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, शहर पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए जरा, हम यासिर फारूकी से पूछते हैं इसको कहाँ पर एग्जैक्टली खड़े हैं और ये पानी यासिर यहाँ पर कितने दिन से खड़ा है, इंतजामिया क्या कर रही है, यहाँ पर कोई आया? देखें, बारिशों के बाद सक्खर शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। 70 शहर का 70% जो शाहराएं हैं, मरकजी शाहराएं, चौक चौराहे हैं, गली मोहल्ले हैं, वो ऐसे हैं जहां पे कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें पुराना सक्खर है, वसपुर मोहल्ला है, नवा गोट है, न्यू पिंड है, इस्लाम कॉलोनी है, वहां पे घरों में कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है और वहां पे लोग अभी भी मजबूरी की हालत में रह रहे हैं उस पानी में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सड़क है जो जुड़वा शहरों सक्खर को रोड़ी से मिलाती है। यहाँ पे अभी मुझे भी आप देख सकते हैं कि मैं घुटनों यहाँ पे जो है पानी है उसमें खड़ा हुआ हूँ। और जैसे जैसे हम इस सड़क को लेके आगे चलते चले जाएंगे तो ये पानी की जो सतह है वो बुलंद होती चली जाएगी। ये तकरीबन अगर पुराने सक्खर की तरफ भी रास्ता जाता है, आधा पुराने सक्खर जो है इस पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे कई अफराद ऐसे हैं जो अपने घरों में महसूर हो गए हैं, जिन्होंने अपने छतों पे पनाह ली हुई है। इस रोड पे जहाँ पे वैगनें चलती थी, गाड़ियां चलती थी, मोटरसाइकिलें चलती थी, वो बिल्कुल वीरान पड़ा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कश्ती चलती हुई नजर आ रही है। यासिर, आप ये कहिएगा, बिल्कुल कश्ती चलती नजर आ रही है। पुराने सक्खर के खासतौर पे जो रिहायशी हैं वो, यासिर ये बताइएगा आप कि सक्खर, अगर हम सक्खर की बात करें, कराची के बाद एक बड़ी मुआशी हब उसको कहा जाता है सक्खर को, एक कदीम शहर सक्खर और बड़ी उसकी तारीख वाबस्ता है। तो क्या इंतजामिया क्या कर रही है, यानी समझ नहीं आ रहा। हम जहां से भी रिपोर्ट ले रहे हैं कमोबेश एक ही तरह के मनाजिर हैं हर जगह के, सक्खर के भी वही मनाजिर हैं। देखें, इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जो है तस्वीर की हद तक महदूद नजर आ रही हैं। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने मुतबादिल तरीके से इंतजाम तो जरूर किया है, मुतबादिल मोटरें भी लाके रखी हैं, जनरेटर भी लाके रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे में से 12 घंटे मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन जो पानी निकालने के लिए मोटरें चल रही हैं वो 2 से 3 घंटे चलती हैं। मेरे दाएं जानिब आप देखेंगे एक मोटर पड़ी हुई है, वो इस वक्त भी बंद है। यहाँ से पानी निकालने के लिए ये मुतबादिल तौर पर मोटर लाके रखी गई थी, लेकिन वो यहाँ पे आए हैं तो बंद नजर आ रही है। इस वक्त यहाँ पे नकासी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल तमाम इलाकों में नजर आ रही है। स्टार्टिंग में ही रेन इमरजेंसी जब नाफिज की गई थी तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को तंबी की गई थी कि वो अपनी तमाम मोटरें सही करा लें, मुतबादिल इंतजाम रखें, क्योंकि जब लाइट होती है तो बिजली भी चली जाती है। उसके बावजूद पब्लिक हेल्थ अफसरान की जानिब से उनकी गफलत की वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई है कि जब पानी भरना शुरू हुआ है तो उनके जितने पंपिंग स्टेशन थे वहां पे जो मोटरें थी वो भी जल चुकी हैं, जिसके बाद ये मुतबादिल मोटरें यहाँ पे लाके रखी गई हैं। अब तक मैं आपको बताऊं कि बहुत आपने पूरा खुल के जो है सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया। सक्खर से मुतालिक बहुत शुक्रिया आपका। आपने लीना कहा क्यों, वो इसलिए कि 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है दिन में। हाँ। तो जनरेटर कैसे चलेंगे और कैसे? लेकिन ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है, अगर इतना पानी खड़ा है और बिजली नहीं बंद करते पीछे से तो किसी को करंट लगने का भी खदशा है। तो हर तरफ से आफत ही आफत है। जरा मजीद शहरों की बात भी करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।